Okay, class, here we go. Lecture number 4, uh, Family to Hindu Marriage Act. Now, see what has been covered till now, just a small recap. Earlier, we saw the necessary ceremonies of marriage. Then, we saw that marriage has to be compulsory registered. Section 7, ceremonies of marriage. Section 8, registration of the marriage. It is compulsory, mandatory, but non registration does not affect or does not renders the legal status of a marriage. Basically, the marriage must be a valid marriage, then only the registration will help. So ipso facto, if any marriage is registered, will not affect validity of the marriage. Even if it is not registered, marriage will not become illegal or void. But if a marriage is void, and if a marriage is basically a void marriage and it gets registered, it will still remain void though it is registered. So registration in no way affects the existence of a marriage. Only thing is what I told you in the last lecture, that in case a marriage is registered, it has to be registered with the register of marriages, the same office where the agreements and all another documents, all other types of documents are registered. When it comes to Thane city, we have a registration office. A registrar sits in the same premises where Register of Sub Assurances is having his office, opposite St. John School, opposite the Perfect Motor School, just near Gadkari Rangaitan Auditorium. Then these powers have been also delegated to different MTNL offices, Maharashtra Telephone Nigam Limited offices, Charai, that is opposite Ganesh Talkies. Then one more place is there where we can go for registration. It is in Balkum. It is also a MTNL office. So these are the offices where you can go and register your different documents, and documents can be registered also online. That apart, register of marriages is there in that same office, and a registered marriage is performed before that. That also I told you, under the Special Marriage Act. And marriages which are solemnized under the Hindu Marriage Act are also subsequently registered before the registration, before the register of marriages. Then going further, we discuss section 14, that is the mandatory period, that as per law, as per the Hindu Marriage Act, a marriage petition for divorce cannot be filed for a period of at least 1 calendar year from the date of solemnization of the marriage. Then section 16 was covered, legitimacy of children, that irrespective of the fact whether children are born out of a valid marriage, void marriage or voidable marriage, the children remain legitimate. Because ideally, if a marriage is rendered void, that we saw in section 11, uska consequences kya hoga? Consequence number 1, it is no marriage at all in the eyes of law. Number 2, if it is no marriage, the parties are not legally wedded husband and wife. Number 3, effect number 3 or consequence number 3, that the parties have no rights and liabilities against each other, and children which are born out of such wedlock are ideally illegitimate children, नाजायज औलाद होती है. बट वो बच्चों का दोष क्या है? सो दे हैव बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 16, and irrespective of the fact that they are born out of void marriages, children are deemed to be legitimate. Then section 11 और 12 cover हो गया. सेक्शन 11 डील्स विद वॉइड मैरिजेस. सेक्शन 12 जो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, लास्ट वीडियो में, दैट वाज अबाउट वॉइडेबल मैरिजेस. इसका डिफरेंसेस भी वो वीडियो एक बार, वो आपके पास वीडियो, यू कैन रिमाइंड इट एंड सी इट नंबर ऑफ टाइम्स टिल यू अंडरस्टैंड. एंड एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी in our live lectures, which we'll be having shortly in this coming week. But again, let me repeat that your doubts must be purely academic, must not be of personal nature, must not be of any things which are not connected to the topic. Okay, now going further, now today I propose to start with section 9. Now these are the matrimonial causes. Now what are the sections which cover these causes? See, section 9, restitution of conjugal rights. Then second one is section 10, that is judicial separation. Then 11 and 12 we have already done. 11 deals with void marriages, section 12 voidable marriages. Then section 13 deals with the various grounds of divorce. So today I propose to start with section 9, that is restitution of conjugal rights. मराठीमध्ये त्याला नांदवायचा अर्ज म्हणतात, किंवा विवाह हक्क पुनर्स्थापित करण्याची याचिका.
नांदवण्याचा अर्ज किंवा मोर टेक्निकल और मोर प्युअर लँग्वेज विवाह हक्क स्थापित करण्याची पुनर्स्थापित करण्याची याचिका. Now go to section 9. I again presume that you have a bare text ready with you. Those who don't have, kindly make it a point. I am not going to repeat this every time. Now read section 9 for a moment. Restitution of conjugal rights. When either the husband or the wife has, now these words are very important, without reasonable excuse. So kindly underline or bold these words. Without reasonable excuse, withdrawn from the society of other, the aggrieved party may apply by the petition to the district court. Now here in case of Thane, where there is a family court, to the family court. Petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. Now instead of writing this down, just do one thing. Go to the bare text, have a pencil in your hand and write down the numbers that I tell you. Point number 1, every comma is a point. See, whatever punctuation is there in a statute, in a particular section, is a very important internal aid to the interpretation of statutes, which is a subject for you in your last year. So first point, when either husband or the wife. Point number 2, without reasonable excuse. Then point number 3, withdrawn from society of other. वहाँ पे has डाल दो when you are writing your answer. Has withdrawn from the society of the other. Then the next point, that is 1, 2, 3, 4. The aggrieved party may apply by petition to the district court / family court. Next point, for restitution of conjugal rights. And next point, that the court, on being satisfied of the truth of the statements made in such petition. And then the last point, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights accordingly. See the explanation below. When a question arises whether there has been a reasonable excuse, justifiable excuse, मराठीत काय म्हणू आपण, प्रबळ कारण, पुरेसा कारण, has reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. Society means the cohabitation. Now see, so ideally if it is the wife who has left the house and the husband files a petition for restitution of conjugal rights, the wife has to prove that she has a reasonable cause, that she has a sufficient cause, and she has to justify before the court as to why she is not ready and willing to cohabit with the husband. Similarly, in case of husband, if the husband has left the house, or he has driven, or he has created a situation where the wife is forced to leave the house, in that case he has to prove why he is not ready to cohabit with the wife, why he is not ready to take his wife back, and why he is not ready to cohabit with. So जो पार्टी विड्रॉ करेगा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. Read the explanation again for a moment. Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, the burden of proving a reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society. So naturally जो person छोड़ के गया है, अभी दो ही पार्टी होते हैं, husband या wife. So if the husband has left, he has to prove that why he is not ready to come back or not ready to take his wife back in the matrimonial home. And if the wife has left the house, she has to justify
एज टू वाई एंड हाउ द वाइफ इज जस्टिफाई, उसके पास क्या कारण है कि वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है. सी मेरा मूड नहीं है रहने का, ये तो नहीं चलेगा. नेदर दैट एक्सक्यूज कैन बी गिवन बाय द हस्बैंड और द वाइफ कि बाबा हमको नहीं रहने का, आई कैन टेक हर बैक. दैट इज नॉट जस्टिफाइबल. इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक हर बैक, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि आप शादी करने के बाद भी एक साथ पती पत्नी के जैसे एक ही घर में नहीं रह सकते हो. मराठी त्याला काय म्हणतात, एका छताखाली नांदू नाही शकत. दे कॅन कोहॅबिट, वो एक साथ इकट्ठा नहीं रह सकते हैं. सो दैट हैज टू बी प्रूव्ड. ओके, नाउ सर्टन पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर 1, यू कैन राइट डाउन एज फॉर योर कन्वीनियंस, या जब भी आप वीडियो देखो तभी लिख लो. पॉइंट नंबर 1, दैट देर इज नो टाइम लिमिट टू फाइल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट. तो अगर शादी होने के बाद पति पत्नी अलग अलग रह रहे, कुछ साल हो गए, एंड देन द पति या पत्नी गोज बिफोर द कोर्ट एंड फाइल्स अ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दैट कैन नॉट बी अ जस्टिफिकेशन और क्वेश्चन दैट आप पहले 3 साल 4 साल क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए पहले, सो अभी नहीं आ सकते हो, क्यों आए हो, इतना दिन क्यों रुके थे. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड. देयर इज नो टाइम लिमिट. जैसे हमने डिस्कस किया था कि टाइम लिमिट होता है कोई भी एक्शन का अंडर द लिमिटेशन लॉ. देयर इज नो लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल हियर. सो देयर इज नो टाइम लिमिट. देन सेकेंड पॉइंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का पिटिशन फाइल करने के लिए, फॉर फाइलिंग अ पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9, it is not condition precedent that both the parties must have resided together earlier. जैसे पहले था कि लिमिटेशन नहीं है, तो अलग अलग रहे, कुछ साल से बाद में भी फाइल हो सकता है. और ऐसा होता है ना, कभी कभी शादी हो जाती है. ये सब चीज़ें कभी होती है कि वो शायद थोड़े छोटे थे तभी शादी हुई थी, या शादी हो चुकी है, नाउ द वाइफ डज नॉट वांट्स टू कम बैक और डजंट वांट्स टू जॉइन द हस्बैंड, और द हस्बैंड डजंट वांट्स हर बैक, एंड वो लोग कभी साथ रहे ही नहीं है. They have not been cohabiting with each other. So naturally the question of consummation of the marriage does not arises at all. So whether the marriage is consummated or not, what is consummation? Let me repeat again. Last lecture में substantially हुआ है, क्योंकि that is the ground of importance that the marriage is not consummated. Consummated what means what? The first ever physical contact, the first ever marital or sexual intercourse between the husband and wife. वो हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल व्हेन इट कम्स टू रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है इन माइंड ऑफ पीपल एज वेल एज प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स. द मोमेंट कुछ इशू हो जाता है एंड द वाइफ लीव्स द मैट्रिमोनियल होम, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे गेट दिस नॉलेज, कहाँ से ये नॉलेज मिलता है. पत्नी अभी डिवोर्स के लिए फाइल करेगी या क्या करेगी, डिवोर्स के लिए फाइल करेगी नहीं करेगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पति को सबसे पहला फर्स्ट डेंजर या फर्स्ट खतरा रहता है दैट नाउ माई वाइफ विल फाइल एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट मी. एंड बिलीव मी, इवन इफ आई एम अ हस्बैंड, इवन इफ आई एम अ मेल, आई नीड टू से दिस बिकॉज सी सर्टन स्टेटमेंट्स आई हैव टू मेक बोल्डली इवन इफ आई एम अ मेल. और कभी कभी कुछ सेंटेंस रहते हैं दैट गोज अगेंस्ट फीमेल, या कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो you might listen and you might label me as a feminist, that I am completely feminist. Okay, you label me as per your convenience, that makes no difference to me. But believe me, ऐसा मर्द या ऐसे मर्द बहुत कम होते हैं who wants to give money and maintain his wife in the absence of enjoying her company. सो वाइफ के मज़े तो है ही नहीं, ऐसे वाइफ है तो बहुत सारे मज़े भी होते हैं. इट इज़ नॉट ओनली अप टू फिजिकल एक्सटेंट या खाली सेक्स का, उसमें ये नहीं है. वाइफ टेक्स केयर ऑफ द हस्बैंड. सुबह उठो चाय मिलेगी, खाना मिलेगा, काम पे जाओ टिफ़िन मिलेगा, रात को घर पे आओ या शाम को घर पे आओ आपको शाम का भी चाय मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा. यू गेट कंपेनियनशिप, बात करने के लिए कोई है, आप कुछ उल्टा सीधा बोलो सुनने के लिए कोई है. सो इंटरेक्शन भी होता है. सी जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है वो दैट इज़ फॉर सम फ्यू मोमेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली, आई डू एग्री, लेकिन ते सर्वस्व नहीं है. दैट इज नॉट द एवरीथिंग. इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक, एंड आइसिंग के ऊपर जो ये लगता है ना चेरी ऑन द केक, तो चेरी खा के तो केक का एहसास नहीं होगा, खाली चेरी लगा के तो लाइफ नहीं बनेगी, पूरा केक आपको चाहिए. तो नीचे का बिल्डिंग उसको A1 में डालो, उसको तैयार करो, उसका बेकिंग करो, सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग अ केक. तो लाइफ का वैसे ही है. तो वो मोमेंट तो खाली एक चलो पति पत्नी साथ में रहते हैं तो वो एक फिजिकल एक्सप्रेशन है. एंड बिलीव मी, एवरी पर्सन रिक्वायर्स अ फिजिकल एक्सप्रेशन.
मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, या कोई इवन जेंडर है जिसका प्रॉब्लम है, जो ट्रांसजेंडर है उनको भी तो फिजिकली लगता है. सो लेट मी अगेन रिपीट that there are four basic requirements of a person, of a human being, of even in animals: roti, kapda, makan, and fourth is the sexual expression, gender expression, physical भूख. तो शारीरिक भूख जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर एक को लगती है. दिखाओ मत दिखाओ, कोई दिखाता नहीं, कोई बात नहीं करता है, कोई वो मज़े लेके बहुत गंदे तरीके से दे एंजॉय टॉकिंग ऑन दैट वल्गरनेस. वल्गर, इट कैन इवन गो अप टू वल्गर लेवल. या कोई लोग ऐसे हैं, हम लोग उस बारे में बात नहीं करते लेकिन एंजॉय ज़रूर करते हैं. सो नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. तो इसमें कैसे होता है कि ये एक्सप्रेशन हर एक को चाहिए. इवन एनिमल शो इंस्टिंक्ट ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर. तो आदमी की ज़रूरत है. सो वो बात करके आप भूल जाओ. नाउ सी, और एक पॉइंट आप याद रखो, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में, सी रीड दैट सेक्शन अगेन. When either husband or the wife has without reasonable excuse withdrawn from the society of other, the aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court being set, now this is the court's part, and the court being satisfied of the truth of the statements made in the petition. Now this is very important, and that there is no legal ground, why the application should not be granted. So इसको भी अंडरलाइन या बोल्ड करके रखो. there is no legal ground why the application should not be granted. So अगर सिचुएशन ऐसी है that I can, if I am the husband and I am not ready to stay with the wife, or I don't want my wife to come back, I must have some justifiable reason for doing that. I must have a reason justifying that. ऐसे माझा मूड नाही, बायको परत नाही आली पाहिजे, मला ती आवडत नाही, मला तिच्याशी जमत नाही. these reasons will not do, but you must have some reason justifying that why you don't want to resume the cohabitation. Similarly, wife है तो she has to justify why she doesn't want to come back. See, if she doesn't want to come back, उसका इफेक्ट क्या होगा? That she is not ready and willing to cohabit and discharge her part of the marriage. So यहाँ पे क्या होगा? उसका अनविलिंगनेस है. तो अगर पति नहीं चाहिए, you don't have any justifiable reason why you should reside separately, in that case this is a ground for disqualification of claiming any monetary benefit from the husband. In such case, अगर वाइफ को पिटिशन हस्बैंड ने किया है फॉर restitution of conjugal right, and that is allowed, that is decreed by the court, allowed by the court, and the wife yet refuses to go back to the husband, in that case she will be disqualified from claiming any maintenance from the husband. That is a ground of disqualification of maintenance, which I will cover in the live lecture on Google Meet, जो मैंने already चालू किया है. We have already started discussing the maintenance part, what are the different provisions and what are the implications. So that I will cover in that part, in that aspect. Okay. So section 9 is clear. See, अभी कैसे होता है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि वाइफ गई कोहैबिट होने के लिए. शी जॉइंड मैट्रिमोनियल हाउस, पति के साथ गई, गृह प्रवेश हो गया, एंड देन उसको पता चलता है पति बेवड़ा है, रोज़ दारू पी के आता है, पैसे नहीं देता है, या शी हैज सम डिफ़िकल्टीज, या कभी कभी और भी ज़्यादा कोई होगा जो एकदम मनमोस्ती या व्हाट यू कैन से थोड़ा सा कृष्ण टाइप का आदमी है. कैनॉट कंपेयर हिम विद कृष्ण भगवान, लेकिन घर में राम गली में श्याम, दो रूप है. तो घर में एक बीवी है, बाहर भी एक प्राइवेट बीवी है, या रखेल है. तो वो क्या करता है, द रखेल इज कॉल्ड एज कोक्यूबाइन, त्याला इंग्लिशमध्ये कोक्यूबाइन म्हणतात. तर आता ना व्हॉट आई डू, आई टेल माई वाइफ, अरे मेरी एक रखेल है और वो घर में ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहती है, सेम बिल्डिंग वेयर वी लिव, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे. हफ्ते में 3 दिन मैं उसके साथ रहूँगा, हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे साथ रहूँगा. नाउ दिस काइंड ऑफ कंडीशंस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनी वाइफ. सो शी हैज़ अ जस्टिफाइबल रीज़न. तो अगर ये कारण के वजह से वो छोड़ के गई है, या एक्सेंट्रिक बिहेवियर होगा, या कुछ एडिक्शंस है, या कुछ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पर्सन इज मैनियक, थोड़ा सा पागल जैसा बिहेव करता है, रैशनल नहीं है, या और कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है,
which will depend and differ from case to case. So the wife has to justify. अगर वो husband ने petition file किया, she has to justify before the court that there are reasonable grounds why she is not ready and willing to cohabit and the petition cannot be allowed. तो अगर ऐसा वो प्रूव कर सकती है, the court will not decree this petition. Now see, believe me, ये this is the only decree in the world of restitution of conjugal rights which cannot be executed by a court. See, अगर पिटिशन अलाउ हो गया, उसका इफेक्ट क्या होगा? टेल मी, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो. If the petition is by the husband and wife is directed to go back, she has to go back and reside with the husband. And if the petition is by the wife, the husband has to, or the husband is compelled, or the husband is directed by the court to take her back in the matrimonial house. तो अभी इसमें क्या होता है, कोर्ट आके कैसे डिक्री एग्जीक्यूट? सी देखो, if there is a decree to execute any agreement, if there is a decree for recovery of money, जिसको मैंने monetary causes बोलते हैं, for recovery of money, or if there is a suit for say injunction, मनाही हुकुम, तो that can be executed by the court. You can take out execution proceeding. लेकिन इसमें execute कैसे करोगे? You can't force two adults to cohabit with each other. तो क्या दोनों को एक रूम में लॉक कर देंगे, बाहर से ताला लगा दो, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, हम तुम एक कमरे में बंद हो, सोचो ऐसा क्या हो? वो पिक्चर में ठीक है, रियल लाइफ में तो नहीं हो सकता ना, और ज़बरदस्ती से तो हो ही नहीं सकता है. तो हस्बैंड क्या बोलेगा, ठीक है, क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा, क्या एलिमनी देना पड़ेगा, आई एम रेडी टू सफर दोस कॉन्सिक्वेंसेज बट आई डोंट वांट माय वाइफ बैक. एंड वाइफ भी बोलेगी, ठीक है, आई डोंट वांट मेंटेनेंस. एंड नाउ इज अगेन, लेट मी रिपीट, नाउ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. जो कुछ साल पहले था, 20-25 साल 30 साल पहले का पोजीशन था, as compared to that, women are today even more liberated, more liberal, more independent financially. तो वैसे भी उसको खर्चे पाने के लिए वो दूसरे की तरफ देखना भी नहीं पड़ता. नहीं तो इनिशियली था ना कि अरे हस्बैंड छोड़ देगा, मेंटेनेंस नहीं देगा, तो बच्चों का और मेरा क्या होगा. यहाँ पे बीवी क्या बोलती है, औरत क्या बोलती है, बाहर में जा तू, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सफिशेंट इनफ. तो अगर बच्चे होंगे भी तो भी मैं देख लूँगी. और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 90% केसेस में वहाँ पे होते हैं जहाँ पे बच्चे हुए नहीं है, इनिशियल टाइम पे होता है. इसीलिए वो कभी कभी बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, वो बात सुननी चाहिए. और बड़े बुजुर्ग आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग. कभी कभी वो लोग बोलते हैं ना, सी शादी होने के बाद इमीडिएटली डोंट प्लान अ चाइल्ड, थोड़ा सा टाइम जाने दो, 1 साल 2 साल मैरिज को सेटल होने दो. आप लोगों की आपस में कैसे बनती है, वेदर यू कॅन ग्लू विथ इच अदर, जसं त्याला मराठीत म्हणतात तुमचं मितकूट बनते का नाही, वेदर यू कॅन नाइसली ब्लश विथ इच अदर. तो आप एकजीव होता है का नहीं एज हस्बैंड एंड वाइफ, या आप लोग बराबर एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर रहे हो या नहीं. जैसे दूध में शक्कर डालो और मिलाओ तो शक्कर घुल जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन अगर दूसरा कुछ होगा तो नहीं होगा. सो एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग एंड यूर एल्डर्स आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग. तो उसमें क्या होता है, नहीं जमा तो फिर ये अगर लेना पड़ा, डिवोर्स अगर लेना पड़ा, देन थिंग्स बिकम ईजी. अदरवाइज मेंटेनेंस और ये तो इशू तो रहेगा मैरिज में. एंड देन सेकंड इशू क्या होता है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन. half of the matters before the court are these only. See, सेक्शन 24 और 25 मैंने चालू किया है मेंटेनेंस का, उसमें आप एक बार ज़रा सा ठीक से पढ़ लो. दीज ऑर्डर्स आर नेवर फाइनल, दो अंडर 24 तो पेंडेंट लीट है, मीन्स इंटरिम मेंटेनेंस है. वो फाइनल कभी बनता है जब भी फाइनल डिग्री पास हो जाएगी, फाइनल ऑर्डर विल बी पास ऑफ ग्रांटिंग डिवोर्स और नॉट ग्रांटिंग डिवोर्स, या रेस्टिट्यूशन या जुडिशियल सेपरेशन, जो भी होगी वो. In that case, though it is final, these orders are never final. वो that we will discuss in that part. नहीं तो अभी ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा. We will not get sufficient time for this. So in our live lecture we will cover that. That though it is written permanent alimony, these orders are never final and are always subject to change circumstance. वो क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे, लाइव लेक्चर में. ओके. So section 9 is clear. Any difficulty you can ask me during the on the Google Meet, or you can write down those difficulties, and whenever our physical college starts, whenever we meet physically in college, in classroom as usual, जो पहले हम लोग मिलते थे, अब तभी पूछ लो, no issues. Okay. So section 9 यहाँ पे क्लियर होगा. आई वॉज टॉकिंग ऑन वन आस्पेक्ट, वो आई जस्ट लॉस्ट माई साइड. तो कभी कभी क्या होता है ना, वाइफ छोड़ के गई है, अभी वो मेंटेनेंस के लिए मांगेगी,
90% of the time, let me tell you very frankly, whenever husband files petition for restitution of conjugal rights अंडर सेक्शन 9, बिलीव मी आधे से ज़्यादा टाइम पे उसको वाइफ वापस आने की इच्छा होती ही नहीं है. पता नहीं है कहाँ से कौन सजेस्ट करता है, फ्रॉम वेयर लॉयर्स ऑल्सो कम आउट विथ इनोवेटिव आइडियाज़. उनका आइडिया ये होता है कि हम एक काम करेंगे, अपन नांदवायचा अर्ज करूया, रेस्टिट्यूशन का पिटिशन करते हैं, वो नहीं आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, तुमको उसको कुछ देना नहीं पड़ेगा. अरे भाइयों, लेकिन एक बात याद रखो, इवन इफ शी कम्स और नॉट कम्स, दैट इज एट अ लेटर स्टेज. जो इंटरिम मेंटेनेंस है सेक्शन 24 लाइव लेक्चर में कवर करूंगा, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 9 to 13, 9 से 13. 9 restitution of conjugal rights, section 10 judicial separation, section 11 void marriages, section 12 voidable marriages, section 13 द वेरियस ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, जो हम लोग आज के इसके बाद में कवर करेंगे. तो पिटिशन उसके अंडर फाइल होते ही सेक्शन 24 एप्लीकेबल हो जाता है. सो इवन इन केस हस्बैंड और वाइफ गोज बिफोर अ कोर्ट फॉर अ डिक्लेरेशन दैट द मैरिज इज वॉइड, तो अगर मैरिज वॉइड डिक्लेयर हो गया, वो तो फाइनली होगा, इनिशियली तो नहीं होगा. मतलब आप पिटिशन फाइल कर रहे हो तो इंटरिम वे तो नहीं होगा, दैट इज ऑलवेज अ फाइनल डिग्री, अ फाइनल ऑर्डर. सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इवन इन केस ऑफ वॉइड मैरिजेस, सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल, और इंटरिम मेंटेनेंस तो इमीडिएट चालू हो जाएगा. तो वाइफ को वापस लाने का पिटिशन करो, नांदवायचा अर्ज करा, रेस्टिट्यूशन का अर्ज करा, वो करके द हस्बैंड विल नॉट बी अब्सॉल्व्ड और फ्रीड फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ मेंटेनिंग द वाइफ. मेंटेनेंस में ज़्यादा करके कवर करूँगा, लेकिन एक आपको बात बताता हूँ. देर आर सो मेनी जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच क्लियरली लेड द रूल दैट बेग, बोरो और स्टील बट मेंटेन योर वाइफ. तो गरज पड़ी तो भीख मांगो, ज़रूरत पड़ी तो किसी से उधार लो, नहीं तो चोरी करो, डाका डालो. ना कोर्ट कैन नॉट से चोरी करो, डाका डालो, दैट इज अ एक्सट्रीम केस, बट यू हैव टू मेंटेन योर वाइफ, children and also your aged parents. That we will see clearly when we see the provisions of Adoptions and Maintenance Act. तो उसमें मेंटेनेंस पार्ट जो है that will remain same, और जो क्लेम होता है ना मेंटेनेंस का, वो सब जगह पे सेम ही होता है. देन जो भी क्लेम होता है ना, मनी क्लेम, जहाँ पे आप मनी के लिए सूट या पिटिशन फाइल करते हो, देन लेट मी टेल यू, लेट इट बी क्लेम ऑफ द वाइफ अगेंस्ट द हस्बैंड, और लेट इट बी क्लेम ऑफ द पेरेंट्स, एजेड पेरेंट जिनके पास प्रॉपर रहने का बंदोबस्त नहीं है, दे नीड मेंटेनेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, फ्रॉम देयर चिल्ड्रन. और ये वाइफ, एजेड चिल्ड्रन, और दूसरे जो क्लेम्स होते हैं ना, एक्सीडेंट में होता है, देखो मोटर एक्सीडेंट क्लेम. सो नाउ देयर इज अ क्लेम फॉर कॉम्पेंसेशन टू द विक्टिम फॉर डेथ और बॉडी इंजुरी, that is under the motor vehicles act before the motor accident claim tribunal. और कोई समझो वर्कमैन काम पे while discharging duty उसकी डेथ हो गई, so the provisions of workman's compensation act will be applicable. आपका लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था लेबर लॉस. सो वहाँ पे there can be a compensation under, there can be a application for compensation under the workman's compensation act before the commissioner court, means the labor court. तो उसमें भी वही क्लेम होता है. तो उसमें क्या होगा, आदमी का क्या इनकम है, उसकी क्या लाइबिलिटीज़ है, व्हाट इज़ द इनकम इन हिज हैंड्स, उसका खुद का खर्चा निकालने के बाद वो क्या दे सकता है, ये सब चीज़ें होती है. दैट विल सी मोर इन डिटेल ड्यूरिंग मेंटेनेंस. सो नाउ लेट अस गो टू सेक्शन 10, जुडिशियल सेपरेशन. रीड सेक्शन 10. Either party to a marriage, subsection 1, either parties to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present petition praying for a decree of judicial separation on any grounds specified in subsection 1 of 13, and in case of wife also on any of the grounds specified in subsection 2 thereof, as grounds on which a petition for divorce may be presented. So grounds can be the very same for which petition for divorce is presented. Those grounds are set out
in section 13, 13. Section 13, subsection 1 are the grounds of divorce which are applicable to both the husband as well as wife. Then subsection 2, section 13, subsection 2 are the grounds specially or separately available only to the wife and not to the husband. So wife होगी तो grounds are available under subsection 2. So again read that. Either party to a marriage, whether solemnized before or after commencement of this act, may present a petition praying for decree for judicial separation on any grounds specified in subsection 1 of section 13, and in case of a wife also on the grounds specified in subsection 2 thereof, as grounds on which a petition for divorce might be presented. Then see next subsection. Where a decree for judicial separation has been passed, where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but the court may, on application by petition of either party and on being satisfied on the truth of statements made in such petition, rescind, that is cancel or set aside, the decree if it considers it just and reasonable to do so. So for the timing आप क्या करो, बट के आगे है ना उसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दो, फॉर द टाइमिंग उसको अलग रख दो. सो लेट अस रीड सबसेक्शन 2 ओनली टू दिस एक्सटेंट. Where a decree of judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent. So if the husband has filed the petition and judicial separation का decree pass हो गया, it is no more obligatory, it is no more mandatory that the petitioner must respond with the respondent. Similarly, if the wife has filed petition for judicial separation and it is decreed, after a decree is passed, it shall not be duty of the wife, or it will not be obligatory, mandatory, compulsory, morally, legally, whatever, that she should go and reside with the husband. Now see, यहाँ पे खाली एक चीज़ आप समझ लो, if the petition is by the wife and a judicial decree is passed for judicial separation, in that case she is no more required to cohabit with the husband, but the husband has to maintain his wife. तो अगर वाइफ है या बच्चे हैं तो उनका मेंटेनेंस तो वो करना ही पड़ेगा. सो वाइफ इज नॉट ओनली फॉर कंपनी एंड यू कैन एंजॉय द कंपनी ऑफ योर वाइफ, बट यू हैव टू मेंटेन द वाइफ. Only one thing, the parties will not be under obligation to cohabit with each other. And one more thing, see section 376 आप देख लो, जो रेप का सेक्शन है अंडर इंडियन पिनल कोड. It is an offense if during the period of separation the husband has a sexual intercourse with his wife. Now how the wife will go and file a petition और कैसे होगा ये don't ask me, we are not concerned with that right now, but that is a offense. So for parties जिनका judicial separation हो चुका है और अचानक से पति को या पत्नी को एक दूसरे के ऊपर प्यार आ गया, तो please don't get physical, don't get into a physical relationship again till that decree is applied. That decree pass you apply for setting aside. जो पार्ट मैंने बोला ना बाजू में रखो, वो देखेंगे कि if the part, now see, judicial separation हुआ है. जुडिशल सेपरेशन अगर मैथमेटिकली रहता है ना, वैसे आप पुट ऑन करो तो जुडिशल सेपरेशन इज नॉट इक्वल टू डिवोर्स. इवन इफ द पिटिशन इज डिक्रीड एंड जुडिशल सेपरेशन का डिक्री पास हो गया, इवन आफ्टर डेथ. नाउ सी, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जुडिशल सेपरेशन. कि अगर पिटिशन डिक्री हो गया और जुडिशल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? राइट डाउन. नंबर 1, the marital tie or the wedlock between the parties remains intact. Point number 2,
even after a judicial separation decree is passed or has been passed, the parties yet continue legally to be, or they remain legally wedded husband and wife. Only they will not have to stay together. Next consequence, the husband has to maintain his wife and children. Only जो cohabitation part है, that will be set aside, that will be kept aside. And then you have a time. See, judicial separation is not equal to divorce. So marital tie तो अभी तक है, divorce हुआ ही नहीं है. So that will be a ground of divorce that we will see later when we do section 13. See, यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया, सेक्शन 14 जो है, जो बार है, दैट मैंडेटरी पीरियड जो है, दैट अ पिटिशन फॉर डिवोर्स cannot be filed before at least 1 year has elapsed from the date of solemnization of marriage. This limitation, this ground, this bar, or this prohibition for 1 year period is applicable only to section 13, divorce. This is not applicable to section 11, void marriages, not applicable to 12, that is voidable marriages, and also not applicable to section 9 and 10, restitution of conjugal rights, and as well as judicial separation. It is applicable only to divorce, that is section 13. तो जब भी आपको मैं मराठीच्या लगा म्हणतो घटस्फोट जेव्हा पाहिजे असेल तेव्हाच सेक्शन 14 ॲप्लिकेबल आहे, अदरवाइज नॉट. So even if a decree is passed under section 10, still the parties will remain husband and wife. उसका एक सेपरेट ग्राउंड है डिवोर्स का, दैट आई विल डील लेटर व्हेन वी डू सेक्शन 13. सो यहाँ पे सेक्शन 9 और 10 कवर हो गया. एनी डिफिकल्टीज प्लीज नोट दैट डाउन एंड वी विल डिस्कस इट इन आवर लाइव लेक्चर. अभी वो सेकेंड पार्ट देखो जो मैंने ब्रैकेट में डालो बोला था ना, टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट, वहाँ पे मैंने ब्रैकेट करने को बोला था. सो व्हाट वी हैव कवर्ड नाउ, वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास, इट शैल नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पिटिशनर टू कोहैबिट विद द रिस्पोंडेंट. यहाँ पे हम लोग रुक गए थे. अभी आगे का पार्ट देखो. बट द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी, आइदर पार्टी मीन्स व्हाट, द पिटिशनर एज वेल एज रिस्पोंडेंट, हस्बैंड एज वेल. नाउ सी, जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटिशन फाइल किया है हस्बैंड ने, लेकिन ये जो प्रोविजन है सबसेक्शन 2, अंडर दिस पार्ट इवन वाइफ कैन अप्लाई फॉर सेटिंग इट असाइड. सो रीड दैट अगेन. बट द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन बाय पिटिशन ऑफ आइदर पार्टी and on being satisfied of the truth and statements made in such petition, rescind means cancel or set aside the decree if it considers it just and reasonable to do so. So now let us assume that there is a difference and a petition is filed by the husband for judicial separation और petition decree हो गया. So now they don't need to cohabit with each other, एक साथ रहना नहीं पड़ेगा, एकत्र नांदावा लगना नहीं, लेकिन they still remain husband and wife. And now under some change circumstance, the wife applies that please set aside this decree, and if the court is set aside that change circumstance है या कुछ है, तो सामने से सी हस्बैंड तो अपोज करेगा तो डिस्प्यूटेड फैक्ट हो जाएगा. लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना, किसी चीज़ की अहमियत, किसी चीज़ का इम्पोर्टेंस उस चीज़ को खोने के बाद पता चलती है. तो कभी कभी पार्टीज डू रियलाइज आफ्टर, जैसा आई टोल्ड यू कि एक लव मैरिज का फेज है, प्री मैरिज फेज है, जहाँ पे आप अफेयर में हो, स्टडी हो, जो भी हो, तो वहाँ पे एक मिलना जुलना, एक कमिटमेंट है, लेकिन वो कमिटमेंट लीगली कभी बन जाएगा व्हेन यू बिकम हस्बैंड एंड वाइफ. एंड देन सडनली रोल चेंज हो जाता है. अरे तो मैंने कल ही बोला था इन अ जोकिंग मैनर कि जो लड़की शादी से पहले सुंदर लगती है वो शायद शादी के बाद बंदर लगने लगे, या जो लड़का बहुत हैंडसम लगता है वो बहुत घटिया लगने लगे. एंड देन अगेन सडनली डिफरेंसेस हो गया, दे अगेन डिसाइड, अलग हो गए, जुडिशियल सेपरेशन का इशू आ गया, जुडिशियल सेपरेशन हो गया, कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, दे स्टार्ट रिसाइडिंग सेपरेटली, एंड देन सडनली ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज दैट दे कांट मैनेज विदाउट ईच अदर. सी मेरा भी ये गलती था. तो ये गलती शायद आदमी को जो है ना पछतावा, आई डोंट नो वाई, हमेशा टाइम निकलने के बाद ही होता है. वाई कांट यू रिकनसाइल एंड वाई कांट यू बी रीजनेबल, तो ये नौबत ही नहीं आएगी. सी नोबडी इज परफेक्ट, कोणी पण सद्गुणाचा पुतळा तर नाही आहे.
कोई 100% करेक्ट तो है नहीं तो हम लोग भगवान बन जाते थे. सो एवरी पर्सन इज विथ इम्परफेक्शन, एवरी पर्सन इज कवर्ड विथ फॉल्ट्स. लेकिन एक दूसरे के फॉल्ट्स को अगर हम कवर करते हैं तो इशू नहीं होगा. एंड दैट आई टोल्ड यू, सी आजकल थोड़ा सा डिवोर्स का जो प्रमाण है या डिवोर्स का जो परसेंटेज है वो क्यों बढ़ गया है. अगेन सी दीज आर वेरी जनरल स्टेटमेंट, सो दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अगेंस्ट my male friends or against the female students or friends sitting in the classroom attending this lecture. See, point number 1, इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. आज की औरत डिपेंड नहीं है हस्बैंड के ऊपर पैसों के लिए. तो पहले के साथ अरे नहीं जमा के लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. अभी की औरत क्या बोलते हैं, ठीक है ना, मैं भी इक्वली कमा सकती हूँ, आई कैन ऑल्सो बाय अ होम, आई एम एट अ गुड पोजीशन, आई कैन स्टे सेपरेटली. मुझे पैसों के लिए किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा. अगर पति ने छोड़ दिया या पति को आपने छोड़ दिया तो जाने का कौन सा रास्ता है, आप कहाँ जाओगे. 99% यू हैव टू गो बैक टू योर पेरेंट्स प्लेस. तो वहाँ पे पता नहीं शायद पेरेंट्स वेलकम करे या नहीं करे. ओके, पेरेंट्स वेलकम करेंगे. अगर छोटा भाई छोटी बहन है जिसकी शादी होने वाली है तो उसके रास्ते में आप रोड़ा बनोगे, यू विल बी अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर हिम. तो ऐसा रहता ना, कह रहे हाँ मुझे शादी करनी, लेकिन मेरी एक बहन है जो वापस आई है, तो नेचुरली क्या हो जाता है ना कि अरे बाप रे, ननन वापस आई है और घर में रहती है तो 2 सासू के बराबर हो गया, तो उसकी भी मच सुननी पड़ेगी. तो सी गर्ल्स जो वुड बी वाइफ्स है वो प्रॉस्पेक्ट्स को बहुत धीरे से देखती है और बहुत समझ के लेती है. तो दैट बिकम्स अ डिस्क्वालिफिकेशन. और किसी भाई को भी रहता ना, अरे बहन वापस आ गई तो सब प्रॉब्लम है, तो जब तक उसका पति कुछ देगा नहीं देगा, शी विल बी डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, या शायद मुझे सपोर्ट करना पड़े, तो शायद उतना वेलकम आपको वहाँ पे भी मिले नहीं. तो ये सिचुएशन आज के इसमें है नहीं. आजकल तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसे पहले कैसे था, जब भी लड़की की मराठी त्याला पाठवणी म्हणतात, शादी के बाद जब भी विदाई होते हैं ना तो माँ बच्चे को लड़की को समझाती है कि अभी तुम उस घर में गई हो, नाउ यू आर पार्ट ऑफ दैट फैमिली. तो पहले कैसे था, अभी तुम डोली पे जा रही हो तो आरती में ही निकलना वहाँ से, वापस घर मत आना. तो आजकल के पेरेंट्स ऐसे नहीं बोलते. लेकिन कुछ साल पहले पेरेंट्स कैसे बोलते थे, अरे समझ के ले लो, तो थोड़ा बराबर एवरेज से समझ लो, थोड़ा अगर आपको ये करना पड़ेगा, इफ़ यू हैव टू सेटल डाउन थिंग्स, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो करो, लेकिन वो घर को पकड़ो, छोटों को प्यार दो, बड़ों का आशीर्वाद लो, बड़ों को इम्पोर्टेंस दो, बड़ों को आदर सत्कार करो. आजकल कैसे सिखाते हैं, अरे लड़कीची बाजू है, अपन हम लोग लड़की वाले तो क्या कम है क्या किसी से. अरे पैसों में तो हम लोग भी कुछ कम नहीं है, पढ़ा लिखा हमने भी किया, हम भी पढ़े लिखे, हम भी अच्छे और शानदार इंसान हैं. तो लड़की की बाजू आजकल वीक नहीं है. तो तुमको कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एडजस्ट मत करो, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वापस आ जाओ. हाँ ये परत क्या प्रॉब्लम नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे. तो ऐसे आप बोल के भेजोगे तो लड़की वैसे भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी. कभी कभी क्या रहता है ना, वो इशू को आप थोड़ा मैच्योरली हैंडल करो. दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ इक्वली, मेल्स एज वेल एज फीमेल. इवन मेल्स आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग और समझदार भी होते हैं, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन वाइफ की ये नहीं रहते, बिकॉज सी क्या हो गया ना, थोड़ा सा वुमन सेंट्रिक लॉज हो गया है. तो आई एम नॉट मेकिंग अगेन एंटी फेमिनिस्ट स्टेटमेंट, लेकिन आजकल के जो लॉज है दोस हैव बिकम वेरी वन साइडेड. एंड हस्बैंड इज़ अ बेचारा आदमी, अगेन लेट मी रिपीट, बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. उसको डिफेंस बहुत कम है, और कुछ भी होने दो, वाइफ इवन वापस नहीं जाती है तो भी उसको मेंटेन तो करना ही पड़ेगा. तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाता है, वो मेंटेनेंस में आई विल डील दैट मोर इफेक्टिवली. तो क्या होता है ना, अरे पैसे भी ले रही है, आ भी नहीं रही है, ये भी है वो भी है, अलग अलग है. तो मेंटेनेंस और इसका जब भी कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर हो सकता है तो आई विल इवन डिस्कस सर्टन केसेस विच आई हैव हैंडल, जहाँ पे मैंने कुछ अजीब सी चीज़ें देखी है. एंड एज आई टोल्ड इन वन ऑफ द लेक्चर्स दैट फ्यू ईयर्स बैक, अराउंड 8-10 साल पहले, आई हैड कम टू अ कंक्लूजन एंड आई हैड गिवन अप टेकिंग मैट्रिमोनियल मैटर्स. और मैंने वो क्या बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा नहीं ली थी, आई हैड नॉट टेकन एनी भीष्म प्रतिज्ञा, बट आई हैड डिसाइडेड आई विल नेवर टेक मैट्रिमोनियल मैटर्स अगेन. अरे मुझे डर लगता था कहीं मेरा ही डिवोर्स ना हो जाए इस सब चक्कर में. सी क्या होता है ना, योर क्लाइंट इज़ अ लेडी एंड यू कम टू नो, सी क्या होता है ना, पार्टीज जो आते हैं ये तो हर सिविल क्रिमिनल सब मैटर में एप्लीकेबल है. पार्टीज़ को जो सूट करता है वही आपको बताएंगे, खुद की गलती कभी भी नहीं बताएंगे. वो पति ने क्या क्या किया था, नवऱ्याने कुठे कुठे शेण खाल्लं, कुठे कुठे चुकला, उसने क्या क्या गलत किया, ये आपको खुल के चढ़ा के बताएगी. लेकिन खुद ने क्या गलती किया था वो आपको क्लियरली नहीं बताएगी. इट्स अ रूल, इट्स अ फैक्ट. सेम विद हस्बैंड ऑल्सो. तो कभी कभी क्या होता है कि यू कम टू नो दैट अरे मेरी क्लाइंट कैसी है और वो जानबूझ के तकलीफ दे रही है एंड शी इज़ नॉट रेडी टू सेटल डाउन. तो कभी कभी वो गुस्सा मन में रहता है, तो कभी कभी ना औरत जात पे ही गुस्सा आ जाता है, घर ही जा तो
घर पे जाता हूँ कुछ हो जाता है समथिंग, और वाइफ लाड़ या प्यार से कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। कभी कभी प्यार से भी उल्टा बोला जाता है, और शायद मैं उस टाइम पे बहुत गर्म दिमाग का रहता हूँ, एंड देन आई ब्लास्ट और बड़ा सा पटाखा बज जाता है घर में, एक ह्यूज बॉम्ब के जैसा आवाज आता है, डूम। एंड शी इज नॉट इवन अवेयर, अरे मैंने तो मजाक में बोला था, इतनी बड़ी बात क्या हो गई। देन वो उसको गुस्सा रहेगा, फिर उसका गुस्सा शांत होने में बहुत टाइम लगेगा, फिर मुझे उसको जाके पटाना पड़ेगा, अरे गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो ये सब चीज़ों में मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा ही डिवोर्स ना हो जाए, तो मैंने वो मैटर्स लेना ही बंद कर दिया था। दैट अपार्ट, लेकिन पापी पेट का सवाल है, घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, शेन खानर। एंड द मोमेंट आई स्टॉप गोइंग टू हाई कोर्ट, जब हाई कोर्ट जाना कम हो गया तो ये मैटर्स फिर से लेना पड़ा है ना। आई वॉज फोर्स, सी you can select your matters provided you come from what you can say, you have ancestral properties, आपके बाप ज़्यादा के ज़माने से लॉयर्स है। सो आप जब भी लॉयर बनते हो, योर फादर इज एस्टेब्लिश लॉयर एंड देर आर मोर देन 1000-2000 केसेस पेंडिंग इन द ऑफिस, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं खाली सिविल लूँगा, मैं क्रिमिनल लूँगा। व्हेन यू आर, आप शुरू कर रहे हो तो आपको जो मैटर आएगी वो लेनी पड़ेगी। शुरू में तो आई हैव इवन अपीयर्ड इन रेवेन्यू मैटर्स बिफोर तहसीलदार, बिफोर द कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, और मंत्रालय में भी गया हूँ मिनिस्टर लोगों के सामने। वो प्रैक्टिकल लेक्चर में कभी आई विल डील विद दैट आस्पेक्ट। ओके, सो जुडिशल सेपरेशन यहाँ पे ये हो गया। तो लेट मी अगेन रिपीट दैट इवन इफ अ डिक्री फॉर जुडिशल, सी सेक्शन 9 जो हमने देखा रेस्टिट्यूशन, उसका एक प्रॉब्लम क्या है, दैट डिक्री कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड, टू पर्सन्स कैनॉट बी फोर्स टू लिव विथ ईच अदर। तो अगर वाइफ को डायरेक्शन हुई है, देयर इज अ डिक्री पास दैट गो एंड कोहैबिट विद योर हस्बैंड, उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो। या हस्बैंड के पास डिक्री हुई है, ही विल नॉट टेक वाइफ बैक, ही डजंट वांट्स अ वाइफ बैक, तो डिक्री होने के बाद भी उसका कुछ ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस नहीं है। जुडिशियल सेपरेशन ऑल्सो आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों रखा हुआ है, क्योंकि क्या होता है, इवन इफ डिक्री इज पास द पार्टी स्टिल रिमेन कंटिन्यू टू रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इतना कोर्ट में जाके मगजमारी करके फ़ायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा वाइफ को, और वाइफ को भी पति है उसको, ठीक है आप उसके साथ जाओगे नहीं, रहोगे नहीं, यू विल नॉट बी कोहैबिटिंग विद हिम, बट ही विल स्टिल रिमेन योर हस्बैंड। सो इवन द वाइफ कैन नॉट रीमैरी, नाइदर द हस्बैंड कैन रीमैरी। तो जुडिशियल सेपरेशन चाहिए क्यों, सीधा डिवोर्स ही ले लो। दैट इज अनदर प्रैक्टिकल एंगल टू दैट। सो यहाँ पे सेक्शन 9 और 10 खत्म हो गया। नाउ सी, जो डिवोर्स है वो मैं चालू करता हूँ, लेकिन डिवोर्स चालू करते वक्त आई विल नॉट गो, और रादर आई एम नॉट गोइंग एज पर द व्हाट यू कैन से सीक्वेंस, सेक्शन 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, में ऐसे सीक्वेंस से जा रहा हूँ जो आपको समझने में ईजी पड़े। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, व्हेन आई नाउ इमीडिएट टाइम स्टार्टिंग विद डिवोर्स, तो वहाँ पे वी विल बी फर्स्ट कवरिंग डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, then I will cover grounds which are available to both husband and wife but under section 1A, and then I will start with the actual grounds of divorce, जहाँ पे झगड़ा है, contested divorce है, समझने में थोड़ा सा easy हो जाता है इसलिए। Now see, go to divorce section 13(1)(3). Now before starting with sections of divorce, that is section 1, subsection 1 and subsection 2, I first propose to go to section 13B, 13B, divorce by mutual consent. Now see, ये जो कोडिफाइड लॉज होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, देन लिमिटेशन में आर्टिकल सेक्शन दोनों है, यूजुअली सेक्शंस होते हैं। तो ये सेक्शन के 2 सेक्शन के बीच में जब ये कोई नया सेक्शन इंसर्ट किया जाता है, उसको ABCD डाला जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है, नया सेक्शन आप बीच में अगर इंसर्ट करोगे वो चैप्टर में, तो आगे के सेक्शन बदलते जाएंगे एंड देयर विल बी अ ह्यूज चेंज। तो वो अवॉइड करने के लिए उसको ABCD कर देते हैं। सो नाउ सी, दिस सेक्शन 13B हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट। तो जब भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कमेंस हुआ था, उसमें 13B का प्रोविजन नहीं था। दिस वॉज इंसर्टेड in 1976. Now see, section 13B was borrowed from the Special Marriage Act. Special Marriage Act में ये प्रोविजन था, बिफोर हिंदू मैरिज एक्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन था, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वेयर बोथ द पार्टीज कैन जॉइंटली गो बिफोर द कोर्ट एंड अप्लाई जॉइंटली। एक ही टाइम पे हस्बैंड और वाइफ दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं।
सो दिस वॉज ब्रॉट बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट इंसर्टेड लेटर ऑन. लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द स्पेशल मैरिज एक्ट. नाउ रीड सेक्शन 13B फर्स्ट. डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, संमतीनी घटस्फोट. सबसेक्शन 1, subject to the provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by a decree of divorce may be presented to the district court, now family court, by both the parties to a marriage together. ये together वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो. टूगेदर मीन्स व्हाट? एक ही साथ, एकत्र, एक ही टाइम पे. Together, whether such marriage was solemnized before or after commencement of the Marriage Act, Amendment Act 1976, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more, that they have not been able to live together, they can't cohabit with each other, they can't live together, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Now see, right, ये points को आप खाली 1 2 3 4 लिख लो पेंसिल से, no need to write down. Point number 1, subsection 1 में देखो, subject to provisions of this act, a petition for dissolution of marriage by decree of divorce may be presented. ये point number 1 हो गया. To the district court. तो district court की जगह क्या होगा? मैं let me repeat again. डिस्ट्रिक्ट जो जज के पास मैटर नहीं जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मैटर नहीं जाएगा. दिस विल गो बिफोर द फैमिली कोर्ट इफ देर इज़ अ फैमिली कोर्ट फॉर दैट सिटी. और अगर फैमिली कोर्ट नहीं होगा तो इट विल गो बिफोर द सिविल जज सीनियर डिवीजन, दीवानी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर. देन सेकेंड पॉइंट, on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more. ये second point. And third point, that they have not been able to live together. And fourth point, they have mutually agreed that marriage should be dissolved. See, वो लोग ये प्री डिसाइड करके कोर्ट के सामने जाते हैं that we want our marriage to be dissolved. They are not praying before the court कि हमारे मैरिज को डिसॉल्व करो, हमको मैरिज डिसॉल्व करना है, काइंडली एक्सेप्ट दिस रिक्वेस्ट. और कंटेस्टेड में क्या होता है सेक्शन 13 के अंडर? दैट वन पार्टी इज प्रेइंग फॉर डिवोर्स, आस्किंग फॉर डिवोर्स, डिमांडिंग फॉर डिवोर्स, एंड द अदर पार्टी कैन देन कम एंड आइदर एग्री कर देंगे तो बात खत्म, लेकिन दैट अदर पर्सन कैन कंटेस्ट एंड अपोज दैट पिटिशन. इट कैन बी अपोज. तो वो एक इशू है. सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया. पॉइंट नंबर 1, अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डिवोर्स कैन बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑब्लिक फैमिली कोर्ट बाय पार्टीज टू द मैरिज टुगेदर. देन सेकेंड पॉइंट, ऑन द ग्राउंड दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड, एक साल से ज़्यादा वो लोग अलग अलग रह रहे बिफोर प्रेजेंटिंग द पिटिशन. सो ऑन द डेट जब ये पिटिशन फाइल करने जा रहे दे आर ऑलरेडी लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year और मोर. नेक्स्ट पॉइंट, दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, वो लोग साथ में रह ही नहीं सकते. एंड लास्टली, दे हैव म्यूचुअली एग्रीड दैट द मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड. ये 4 पॉइंट समझ में आ गए? ओके, फाइन. देन गो टू सबसेक्शन 2. Now see, this is after filing the petition. So subsection 1 यहाँ पे खत्म हो गया, petition फाइल हो गई. On motion of both the parties, subsection 2, on motion of both the parties not made earlier than 6 months and after the date of presentation of the petition referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date. So 6 महीने पिटिशन फाइल होने के बाद में और 18 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए. सो आइडियली सी पार्टीज घाई में और वो लोग डिवोर्स के लिए आए तो कोर्ट भी क्यों रुकेगा? इफ बोथ वांट डिवोर्स, नोबडी इज अपोजिंग, तो देयर इज नो बिजनेस फॉर द कोर्ट टू इंटरफेयर बियॉन्ड दैट. हाँ, एक बार आपको वंस यू फाइल द पिटिशन तो एक मैरिज काउंसलिंग होता है, दे विल सेंड यू टू द काउंसलर. वो काउंसलर एक बार ट्राई करता है कि आप डिवोर्स क्यों ले रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. तो इनिशियल आई विल टेल यू वर्ड प्रैक्टिकली क्या होता है. जब भी डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के लिए फाइल करता हूँ, एक डेट आ जाती है
वो काउंसलिंग की होती है. यू गो बिफोर द कोर्ट विल से हाँ ठीक है काउंसलर के पास जाओ, 1 तारीख है, काउंसलर के पास आप जाओ और काउंसलर को बोलो कि बोथ पार्टीज आर प्रेजेंट. देन दे विल कॉल यू एज पर द सीरियल नंबर जो उनके पास मैटर है उनके हिसाब से. तो पहले पिटिशनर को बुलाया जाएगा नंबर 1 को. देन पिटिशन नंबर 2 को तो पहले हस्बैंड को बुलाया जाएगा फॉर एग्जाम्पल, या वाइफ को जो भी है वो. देन सेकंड को बुलाया जाएगा, पहले हस्बैंड की बात सुन लेंगे. देन हस्बैंड विल बी आस्क्ड टू वेट आउटसाइड. देन वाइफ विल बी कॉल्ड इन. देन उसकी बाजू सुन लेंगे क्या प्रॉब्लम है. देन उसके बाद में दोनों को अंदर बुलाते हैं और दे ट्राई टू रिकनसाइल. इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट टू सी इफ द मैरिज कैन बी सेव्ड. बट इफ द पार्टीज आर स्टबन, उनका इरादा हो ही चुका है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है. यू हैव टू, एक कल ये था बिकॉज क्या होता है ना, द लॉ स्टिल बिलीव्स, और अंडर द हिंदू लॉ इवन टुडे वी बिलीव दैट डिवोर्स इज इविल. क्या होता है, एक घर टूट जाता है, एक फैमिली टूट जाती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चे बिखर जाते हैं. सिर्फ बच्चों, द डिवोर्स इज बिटवीन द पेरेंट्स, द डिवोर्स इज बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, बट डिवोर्स इज एक्चुअली एंड प्रैक्टिकली नेवर बिटवीन द फादर एंड मदर. बच्चों को तो दोनों चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला था, और जब भी कस्टडी डील करूंगा तभी वी विल गो इनटू दिस डिटेल. बच्चों को दोनों प्यार चाहिए. माँ क्यों चाहिए, प्यार दुलार लाड़ संभालने के लिए. सो व्हेन इट कम्स टू लव एंड अ काइंड ऑफ सिक्योर फीलिंग, इमोशनली सिक्योरिंग फीलिंग, तो माँ चाहिए. और जहाँ पे सोशल का कुछ ये है, फाइनेंशियल है, या घर से बाहर निकलो तो हाँ ये है वो है, सो वो एक जो सिक्योरिटी होती है उसके लिए फादर चाहिए. सो दोनों का रोल बच्चों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द चिल्ड्रन टू चूज. अगर चिल्ड्रन को आप बोलोगे ना अरे माँ बाप अलग हो रहे, किसको किसके साथ जाना है, तो उनकी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज उनको दोनों चाहिए. सो डिवोर्स इज बिटवीन द, इट इज प्रैक्टिकली बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड नॉट बिटवीन फादर एंड मदर. इवन समझो डिवोर्स हो गए, नाउ यू आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन वो बच्चे के हिसाब से पेरेंट्स तो रहते हो या नहीं रहते हो. तो बच्चे अगर छोटे, बच्चा अगर 10 साल का है, तो जब तक वो कमाने नहीं लगेगा, इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा, द फादर हैज़ टू सपोर्ट हिम फाइनेंशियली, इवन इफ द चाइल्ड कंटिन्यूज टू बी इन द कंपनी ऑफ द मदर एंड वाइस वर्सा. अगर बच्चे फादर, कभी कभी फादर के पास रह जाते हैं, तो अगर फादर कंटिन्यूज विद द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, द वाइफ हैज़ ऑल्सो टू सपोर्ट द चिल्ड्रन. तो वो तो रहेगा ही. ओके, see now before actually completing this section, let us first complete this subsection 2. On motion, again read section subsection 2. On motion of both the parties made not earlier than 6 months and after the date of presentation of the petition referred to in subsection 1, not later than 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime. सो कंसेंट विड्रॉ करने के लिए 6 महीने का टाइम है. इन द मीन टाइम द कोर्ट शैल, ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट दैट अ मैरिज हैज बीन solemnized and that the averment made and the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with the effect from date of the decree. एक एक कंपोनेंट समझ लो. सी क्या होता है, आपने मैटर फाइल कर दिया, कंसिलेशन हो गया, आपको नेक्स्ट तारीख में कोर्ट में बुलाया जाएगा. 6 महीने के अंदर की तारीख होती है या 6 महीने के आसपास की तारीख होती है. सो एज्यूम यू हैव फाइल्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो राइट नाउ अगस्त इज गोइंग ऑन. तो अभी आपका कॉल आएगा, मतलब आपको तारीख तो पहले से मालूम रहती है, वो तारीख को आप कोर्ट में जाओ. अगर कंसिलेशन हो चुका है, द नॉट कंसिलेशन, द मैरिज काउंसिलर के पास मीडिएशन हो चुका है, एंड नाउ द मैटर इज बिफोर द कोर्ट विल ओनली वेरीफाई. तो दोनों पार्टीज को फिर से पूछा जाएगा कि आपने कंसेंट से डिवोर्स के लिए फाइल किया है, आर यू स्टिल स्टेडी ऑन योर एवरमेंट, आपको अभी भी डिवोर्स चाहिए क्या, ये पूछा जाएगा. तो दोनों पार्टीज हाँ बोलेंगे, उनको डिवोर्स चाहिए तो ठीक है. देन दे विल ओनली आस्क 4 थिंग. पॉइंट नंबर 1, दोनों को अलग से विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता है, एंड दे विल बी आस्क पॉइंट नंबर 1 डेट ऑफ मैरिज, पॉइंट नंबर 2 क्या काम करते हो, कहाँ रहते हो, पॉइंट नंबर 3 डेट ऑफ सेपरेशन, क्या आप कब से अलग रह रहे हो, एंड देन द कोर्ट विल अगेन गिव यू अ लास्ट चांस, विल आस्क यू कि बाद नक्की डिवोर्स चाहिए नहीं चाहिए. हाँ चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या चाहिए, वो ज़्यादा इंक्वायरी डीप में नहीं होगी. ओनली दे विल
ascertain that you are firm on that part, on your part, and then they will pass a decree. Then the wife, suppose the first party is husband, उसके साथ ये हुआ है, then बाद में उसको बाजू में करके वाइफ को बुलाया जाएगा, हर स्टेटमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड, उसका एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, एंड वही उसको रिपीट करना। नाउ सी गर्ल, नाउ इफ शी इज़ अ वाइफ, तो उसको और एक क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, उसका मेडन नेम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, शादी से पहले आपका नाम क्या था? ये था। देन सेकेंड पॉइंट, आप क्या करते हो? वह ये करते हो। आप कहाँ रहते हो? वहाँ रहते हो। तो आपको साथ में नहीं रहना, यू डोंट वांट दिस मैरिज? आंसर इज नो। कब से अलग रह रहे हो? व्हाट इज द डेट ऑफ मैरिज, प्लेस ऑफ मैरिज, वो कोर्ट वेरीफाई करेगा टू सी वेदर यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। नहीं तो किसी को कुछ पढ़वाया, लिखवाया और लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन आफ्टर वेरीफाइंग बोथ द पार्टीज, दोनों को पूछा जाएगा। तो दिस इज द टाइम वेयर वन ऑफ द पार्टीज, अगर उनको विड्रॉ करना है कंसेंट, तो विड्रॉ कर सकते हैं। क्या मैंने तभी बोला था, देन कोर्शन था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, मुझे धमकी दी गई थी, मुझे कुछ और ये किया गया था, या तभी था कुछ ये था, अभी मुझे नहीं चाहिए, नाउ आई वांट टू अपोज। सो यू कैन विड्रॉ। अगर कोई पार्टी अपोज करती है तो पिटिशन उधर ही खत्म हो गया, दैट विल बी विड्रॉन। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? गो फॉर अ कंटेस्टेड पिटिशन। हाँ, वाइफ ना बोलते तो हस्बैंड के उसको इमीडिएटली वेलकम करेगा और दोनों एक साथ निकल जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। सो वंस नाउ सी, सो पॉइंट नंबर 1 पिटिशन फाइल किया, पॉइंट नंबर 2 वो कंसिलेशन भी हो गया, मीडिएशन भी हो गया बिफोर द काउंसलर। पॉइंट नंबर 3, नाउ यू आर बिफोर द कोर्ट इन द नेक्स्ट डेट when you file the affidavits and affirm again, reaffirm that yes we want divorce. Then the court will ask, and अगर लेडी होगी, वाइफ है, तो उसको पहले तो पूछेंगे क्या कि बाबा आपका टर्म्स क्या है, द कोर्ट विल रीड दोज टर्म्स। नाउ सी, अप्रिशिएट, काइंडली अप्रिशिएट वन थिंग, यू आर गोइंग बिफोर द कोर्ट प्रेइंग फॉर डिवोर्स कि हमें शादी नहीं चाहिए, और वी हैव सी अगेन रीड सबसेक्शन फॉर वन and read the last line, and they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. So parties have agreed that the marriage should be dissolved. You go before the court when you don't want the marriage and all terms are settled between the parties. You are not seeking to settle anything between the parties. तो प्रॉपर्टी अगर दोनों के नाम पे, उसका क्या हो चुका है वो भी कोर्ट के सामने रखना चाहिए। कभी कभी रहता है ना दोनों का जॉइंट, एक यूजुअली तो आजकल तो यार फैमिली ऐसे ही चलती है कि एक के तनख्वाह से, एक के सैलरी से लोन का इंस्टॉलमेंट जाता है और दूसरे के सैलरी से घर चलता है। तो नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, किसके नाम पे है या दोनों के नाम पे है, तो कैसे होगा? रिलीज डीड हुआ है क्या? प्रॉपर्टी एक दूसरे को दे चुके हैं क्या है? या अगर इफ़ देयर इज चिल्ड्रन तो उसका कस्टडी किसके पास रहेगा? वेदर नाउ से फॉर एग्जांपल द चाइल्ड रिमेन्स विद द मदर, कस्टडी रिमेन्स विद द मदर, सो इन दैट केस वेदर द फादर विल हैव एक्सेस, वो कितना मेंटेनेंस देगा, या लमसम मनी दिया, या कुछ भी नहीं क्लेम कर रहे हैं। कभी कभी वाइफ क्लेम नहीं करते, सो दैट हैज़ टू बी स्पेसिफिक। व्हाट आर द टर्म्स, कौन से टर्म्स पे आपका डिवोर्स हो रहा है, वो स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करना चाहिए। द कोर्ट हैज़ टू डिसाइड नथिंग, खाली कोर्ट वेरीफाई करेगा इन केस ऑफ अ वुमन दैट उसका स्त्रीधन, तो अगर उसका कुछ वैल्यूएबल्स रहेगा, ज्वेलरी है या और कुछ वैल्यूएबल्स है, वो उसको मिल चुका है, वो आपको मिला है या नहीं वो पूछेंगे। देन अगर कंसेंट टर्म्स में कभी कभी रहता है ना कि वह पति ने एग्री किया है कि वो 5 लाख रुपये वाइफ को दे रहा है, सो वेदर दैट मनी इज रिसीव्ड बाय हर, अगर होगा तो दोनों पार्टीज तो टर्म्स क्लियर रखते हैं, तो शायद उसमें जेरोक्स भी लगाया रहेगा, एक डिमांड ड्राफ्ट का कॉपी भी आप देखो और कोर्ट को दे दो कि ये डिमांड ड्राफ्ट अभी उसको हैंड ओवर किया है, ये उसका कॉपी, उसका नंबर, तो 5 लाख रुपीज़। तो कंसेंट टर्म्स जो होते हैं, व्हाट आर द टर्म्स ऑन विच द डिवोर्स इज ग्रांटेड, तो उसमें लिखा रहेगा 5 लाख रुपया दे रहा है और ये ड्राफ्ट दिया हुआ है, एंड द मनी इज रिसीव्ड एंड एक्नॉलेजेस, द वाइफ एक्नॉलेजेस दैट द मनी इज पेड। तो ऐसा पूरा टर्म्स क्लियर होना चाहिए, and then the court will accept that and a decree of divorce will be passed. Now divorce ka before conclusion, let me give you a summary. Point number 1, both the parties approach the court jointly. So यहाँ पे क्या है, both the parties are seeking same relief, उनको divorce चाहिए। So in this case, in case of a petition by mutual consent, there is no versus. दूसरे केस में कैसे रहता है, A versus B, A petitioner, B respondent, A versus B। यहाँ पे A and B है, A वाई अगर हस्बैंड है तो वो पिटिशन नंबर 1 है, एंड बी इज द पिटिशन नंबर 2, एंड दे बोथ जॉइंटली प्रे फॉर डिवोर्स। तो नंबर 1 कोई वहाँ पे अपोनेंट नहीं होगा, बोथ आर पिटिशनर्स, एंड नंबर 1 नंबर 2 इट्स अ जॉइंट पिटिशन। देन नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट, 1 साल का कैलेंडर सेपरेशन होना चाहिए इन एडिशन टू सेक्शन 14। सो से एग्जाम्पल, उनका 4 महीने में ही झगड़ा हो गया, शादी हुई थी फरवरी में और जून महीने में वो लोग अलग अलग रहने लगे हैं,
So marriage was solemnized in February 2019. 4 months they stayed together and then they came to a conclusion कि नहीं जमेगा. So वहाँ पे उन्होंने अलग रहने का फैसला किया, अलग रहने लगे. तो कैलेंडर सेपरेशन कहाँ से हो गया? मैरिटल सेपरेशन फ्रॉम जून 2019 एंड नाउ वी आर इन अगस्त 2020. सो द पिटिशन इज नाउ मेंटेनेबल. सो शादी 1 साल का तो रहेगा ही कि 1 साल के अंदर तो होगा ही नहीं अंडर सेक्शन 14. एंड इन एडिशन टू दैट ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन 1 साल पहले से उनका अलग अलग रहना चालू हो जाना चाहिए. दे मस्ट हैव रिसाइड सेपरेटली. ये पॉइंट समझ लो. देन एवरमेंट्स में क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल पिटिशन होता है. नो एलिगेशंस, नो क्लेम. इफ देर आर एनी क्लेम्स दोज क्लेम्स आर सेटल्ड बाय द पार्टीज. वो लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं. आप कोर्ट के सामने जाते हो, ये हमारा तय हुआ है, ये टर्म्स में हमको डिवोर्स चाहिए. यू आर नॉट आस्किंग द कोर्ट टू डिसाइड एनीथिंग. ऐसे होगा तो ही डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होता है. सो सपोज फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड हैज एग्रीड टू पे 5 लाख रुपीज टू द वाइफ. देर इज नो चाइल्ड. अगर चाइल्ड है तो वह चाइल्ड वाइफ के पास रहेगा एंड द हस्बैंड कैन विजिट हिम वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ वॉट एवर. सो ये इशू क्लियर हो गया कि मेंटेन देन एंड देन द इट मस्ट हैव अ एवरमेंट दैट द पार्टीज हैव सेटल्ड ऑल देयर क्लेम्स एंड द पार्टीज डू नॉट हैव एनी पास्ट कॉमा प्रेजेंट और फ्यूचर क्लेम्स अगेंस्ट ईच अदर. एक दूसरे के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है. पहले क्या था वो भी मिल चुका है, अभी भी कभी सब हिसाब हो चुका है और आगे भी कुछ क्लेम नहीं. दिस यू हैव टू से क्लियरली. देन जॉइंट पिटिशन होता है. सो जॉइंट एफिडेविट होता है एंड जॉइंटली फाइल होता है. देन इफ़ यू आर हैविंग सेपरेट एडवोकेट्स दैट इज़ फाइन, ऑलवेज एडवाइजेबल. लेकिन एक रहेगा तो भी चलेगा. एक एडवोकेट कैन ऑल्सो फाइल अगर दोनों कंसेंट से कर रहे तो. सो वो फाइल हो गया, पिटिशन प्रेजेंट हो गया. एंड देन देर मस्ट बी अ एवरमेंट. एक उसमें प्लीडिंग होना चाहिए इन द पिटिशन दैट द पार्टीज आर नॉट इन कल्यूजन विथ ईच अदर. वो दोनों का ये एक किस्म का छलावा नहीं है. कभी कभी झूठ मूठ का भी डिवोर्स ले लेते हैं. सिर्फ लोग कुछ भी हद तक जा सकते हैं एंड दे कैन डू फ्रॉड अप टू एनी एक्सटेंट. सो यू हैव टू एश्योर द कोर्ट दैट यू आर नॉट इन कल्यूजन विथ ईच अदर और एक्चुअल डिफरेंस है नाउ यू आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ. तो वो आपको ये चाहिए. एंड वन मोर थिंग कि आप जब ये पिटिशन फाइल करते हो यू हैव टू एक तो एवरमेंट रखना चाहिए. उसमें देयर मस्ट बी दैट पार्टीज आर नॉट इन कल्यूजन विथ ईच अदर. ये होने के बाद में डिवोर्स हो सकता है. खाली उसमें एक है कैलेंडर सेपरेशन है, वो प्रॉपरली दिखाना चाहिए एंड 1 year सेपरेशन इज रिक्वायर्ड. सो पॉइंट नंबर 1, पार्टीज आर रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर 1 year और मोर बिफोर प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन. पॉइंट नंबर 2, कि अभी उसमें एवरमेंट कैसे होगा? कोई भी शादी होती है तो इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसका एवरमेंट कैसे होगा? सी राइटिंग और ड्राफ्टिंग जो है दैट इज समवॉट लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग. कोई पिक्चर का स्क्रिप्ट होता है ना, वैसे ही होता है. स्टोरी होती है, यू आर टेलिंग योर स्टोरी. सो शादी ये तारीख को फलाना फलाना तारीख को यहाँ पे हो गई. वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था, फिर शादी के पहले स्टेटस क्या था कि लड़का डिवोर्सी था, विडोवर था, या लड़की स्पिंस्टर थी. सो अनमैरिड गर्ल इज कॉल्ड स्पिंस्टर एंड अनमैरिड मेल इज कॉल्ड बैचलर. तो देन अ बैचलर, देन अ स्पिंस्टर, देन अ विडो, देन अ विडोवर, देन अ डिवोर्सी, ऐसा पूरा उसका स्टेटस आता है. उन्होंने ये तारीख को ये जगह पे शादी कर ली. देन दे स्टार्टेड रिसाइडिंग विथ ईच अदर. इनिशियली सब कुछ ब्लू था, बहुत अच्छा था. छाया गीत पे हम लोग जैसे देखते हैं वो हीरो हीरोइन जैसे गार्डन में भागते हैं ना, यहाँ से वहाँ से गाने गाते गाते, मैं तेरा आशिक तू मेरा आशिक, ऐसे हम लोग थोड़े दिन तक एकदम मस्त एक दूसरे के प्यार में थे. एंड देन एज आई सेड लाइफ मैरिज इज़ लाइक अ च्युइंगम. शुरू में मीठा लगता है, बाद में उसका टेस्ट निकल जाता है. वैसा होने लगा. एंड देन वी डिसाइडेड कि एक दूसरे का लाइफ हमको ख़राब नहीं करना है. वी डोंट वांट टू स्पॉइल ईच अदर्स लाइफ एंड वी डोंट वांट एनी टेंशंस, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल ऑल्सो, कि कोर्ट के चक्कर काटो, ये करो वो करो. वी डोंट वांट टू मेक एनी एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर. और हमको बिना झगड़ा किए हुए गुड टर्म्स पे डिवोर्स चाहिए. दैट्स इट. देन एक स्टोरी बराबर से जाना चाहिए कि हाँ, देन वी डिसाइडेड टू सेपरेट. हम लोग अलग अलग रहने लगे. बोथ आवर रिलेटिव्स फ्रॉम बोथ द साइड्स ट्राइड टू काउंसिल. दोनों ने ट्राई किया कि दोनों का सेटलमेंट हो सकता है, तो देखो, बट वी आर नाउ बियॉन्ड दैट. ऐसे कुछ हो नहीं सकता है. एंड देयरफॉर नाउ आवर मैरिज इज नथिंग बट एन एम्प्टी शेल. बंदूक में एक बार गोली फायर करो तो कुछ बंदूक में होता है ना, वो कारतूस निकाल के फेंकना पड़ता है, पुरानी वाली जो होती है. सो नाउ आफ्टर वंस इट हैज फायर्ड इट इज ऑफ नो यूज. सो यू कैन जस्ट मेंशन दैट नाउ द मैरिज इज नथिंग बट एन एम्प्टी शेल विच डिजर्व्स टू बी डिस्कार्डेड.
विथ मैक्सिमम फेयरनेस एंड मिनिमम बिटरनेस, और हम लोग का टर्म्स भी सेटल हो चुका है, एंड देयरफॉर काइंडली ग्रांट अ डिवोर्स, ये रहेगा तो सेक्शन 13B के अंडर डिवोर्स हो जाएगा. सो नाउ सेक्शन 9. So what is now covered of matrimonial causes? Section 11 void marriages, Section 12 voidable marriages, Section 9 restitution of conjugal rights, Section 10 judicial separation, and divorce we have first completed the divorce by mutual consent. Now next lecture, next video, I will start with the grounds of divorce which are set out under Section 13. So this is it from me right now. Any queries, please note down and do ask me during the live lectures. This is it for now. Bye bye.